आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शेयर कैपिटल अकाउंटिंग, जहां पर अलॉन्ग विद द बेसिक एंट्रीज वी विल आल्सो डिस्कस एंट्रीज फॉर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. So the question says Divine Limited issued 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 each. The shares were payable as follows: rupees 2 on application, rupees 8 which includes 5 rupees premium on allotment, rupees 2 on first call, rupees 3 on final call. Applications were received for 1,90,000 shares. Mr. X, who was allotted 5,000 shares, paid entire money on allotment. That means यहाँ पर हम entry pass करेंगे for calls in advance. Mr. Y, who was allotted 2,000 shares, did not pay the final call. This is a case of calls in arrears, and his shares were forfeited immediately. Later shares of Mr. Y were issued at 8 rupees per share, fully paid up. That means इस question में along with the basic entries we will also discuss calls in advance, calls in arrears, share forfeiture and reissue of shares. So the first entry will be when you receive share application money. कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला है? 1,90,000. और शेयर एप्लीकेशन पर शेयर कितने रुपए देने थे? 2 rupees per share. So बैंक में कितना पैसा आएगा? 1,90,000 into 2, that is 3,80,000 rupees. और ये पैसा क्यों आया? For share application. So the entry becomes bank account debited, क्योंकि पैसा बैंक में आ रहा है, to share application account, क्योंकि share application यहाँ पर credit होगा because we are receiving money for application. 3,80,000 on both the sides. Next entry is when you transfer the money that is received for application to share capital account. The entry becomes equity share application account debited to equity share capital account. यहाँ पर सिर्फ ये जो पैसा हमने यहाँ पर रिसीव किया था in share application, we are transferring it to share capital account. Amount will be the same जो कि first entry में था 3,80,000 on both the sides. So next entry is for allotment. Allotment due यहाँ पर आपको दिखाना है. So allotment पर कितना पैसा due है? 1,90,000 into 8. That is 15,20,000. So equity share allotment account will be debited with 15,20,000. लेकिन share capital में वही पैसा जाएगा जो allotment का है. Premium वाला पैसा share capital में नहीं जाता है. So to equity share capital account 1,90,000 into 3, because allotment का पैसा without the premium is 3 rupees per share. So 1,90,000 into 3, that is 5,70,000, will be transferred to equity share capital account. Then we will be using securities premium account to show the credit of securities premium that we are receiving. और यहाँ पर कितना पैसा जाएगा? 1,90,000 into 5, because 5 rupees per share is for premium. अब अलॉटमेंट पर आपका कितना पैसा ड्यू था? 15,20,000 रुपए, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है 15,45,000 रुपए ड्यूरिंग अलॉटमेंट. ऐसा क्यों है? बिकॉज मिस्टर एक्स जिनके पास 5,000 शेयर्स हैं, वो अपना बचा हुआ सारा पैसा, दैट मीन्स फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो मिलाकर 5 रुपए की होती है, 5,000 शेयर्स उनके पास हैं, 5,000 इंटू 5, दैट इज 25,000 रुपए वो आपको एडवांस में दे देते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सो वो पैसा कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में, क्योंकि ये पैसा एडवांस हमारे पास आया है विच इज 25,000. 25,000 कैसे आया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलाकर होती है 5 रुपए और मिस्टर एक्स के पास है 5,000 शेयर. सो 5,000 इंटू 5, दैट इज 25,000 रुपीज एडवांस पेमेंट दैट वी आर रिसीविंग ड्यूरिंग अलॉटमेंट. और अलॉटमेंट का तो 15,20,000 रुपए आ ही गया है, ऐसा कोई नहीं है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो. सो 15,20,000 प्लस 25,000 इज 15,45,000 दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. नाउ कमिंग टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो कि है 2 रुपए की. 1,90,000 इंटू 2 इज 3,80,000. सो एंट्री यहाँ पर बनती है फॉर शोइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. द एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 3,80,000 ऑन बोथ दी साइड्स. बट आप कितना पैसा रिसीव करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट कॉल? आपके अकाउंट में आता है 3,70,000 रुपए. ऐसा क्यों है? क्योंकि मिस्टर एक्स
जो आपको एडवांस पेमेंट कर चुके हैं फर्स्ट कॉल की भी सेकंड कॉल की भी, उनका फर्स्ट कॉल वाला एडवांस पेमेंट यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। फर्स्ट कॉल के रूप में वो आपको कितना एडवांस पेमेंट दे चुके हैं, 5000 शेयर। फर्स्ट कॉल पर यू आर कॉलिंग 2 रुपीज पर शेयर, सो 5000 इंटू 2, 10,000 रुपए हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सो आपके अकाउंट में आया 3,70,000 रुपए, 10,000 रुपए आप निकाल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में से। सो टोटल मनी दैट इज कमिंग फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज 3,80,000 rupees. Next entry will be to show the share final call money due. The entry is equity share final call account debited to equity share capital account. Amount will be 1,90,000 into 3, that is 5,70,000. अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा that we need to calculate here. आना कितना चाहिए, 5,70,000, लेकिन इसमें से मिस्टर वाई जिनके पास 2,000 शेयर्स हैं वो अपना फाइनल कॉल पे नहीं करते हैं, और जब कोई फाइनल कॉल पे नहीं करता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, 2,000 शेयर्स हैं मिस्टर वाई के पास, इनटू हर शेयर पर कितने रुपए मंगवाए जा रहे हैं ऑन फाइनल कॉल, 3 रुपीज। सो 2,000 इंटू 3 दैट इज 6,000 रुपीज मिस्टर वाई को पे करने थे हमें, लेकिन उन्होंने नहीं किए हैं। सो कॉल्स इन एरियर्स इज गोइंग टू बी डेबिटेड विद 6,000 रुपीज। और मिस्टर एक्स ऑलरेडी फाइनल कॉल पे कर चुके हैं। मिस्टर एक्स कितना एडवांस पेमेंट दे चुके हैं फॉर फाइनल कॉल, 5,000 शेयर्स उनके पास है, इंटू 3 रुपीज ईच, 15,000 रुपए वो आपको एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। सो 5,70,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000, कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा ड्यूरिंग फाइनल कॉल, 5,49,000 rupees. Now coming to forfeiture entry, जब भी शेयर्स फॉरफीट किए जाते हैं यू नीड टू रिमेंबर कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब शेयर कैपिटल में पैसा आता है दैट मीन्स जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। सो जब भी उससे पैसा निकाला जाएगा दैट मीन्स जब भी शेयर्स फॉरफीट किए जाएंगे, जब भी कैपिटल आपका रिड्यूस हो रहा होगा, सो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और डेबिट कितने रुपए से होगा, आपके जो शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं दैट इज 2,000, और हर शेयर की कॉल्ड अप कैपिटल है 10 रुपए, दैट मीन्स 10 रुपए मंगवाए जा चुके हैं फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सो 2,000 इंटू 10 इज 20,000। सो 20,000 से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद जो भी शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं उन पर 5 रुपए पर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था। सो 2,000 इंटू 5 इज 10,000 रुपीज। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है, जो शेयर होल्डर आपको अभी तक दे चुका था। शेयर होल्डर के पास 2,000 शेयर्स थे और हर शेयर पर उसने सिर्फ कॉल अपना शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया जो कि था 3 रुपए का, लेकिन वो हर शेयर पर 12 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम दे चुका है। सो 12 इंटू 2,000 इज 24,000। सो दैट मीन्स जितना पैसा शेयर होल्डर आपको दे चुका है बट अब उसके शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं, सो जो भी पैसा वो आपको दे चुका है उससे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जो पैसा आपको शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। सो 2,000 शेयर्स थे शेयर होल्डर के पास, मिस्टर वाई के पास, और उसने 3 रुपए पर शेयर जो कि फाइनल कॉल था वो नहीं दिया। सो दैट मीन्स 3,000 इंटू 2 इज 6,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री होगी री इशू की, क्योंकि अब कंपनी जो 2,000 शेयर्स फॉरफीट किए जा चुके हैं उन्हें री इशू करती है। री इशू करती है 8 रुपए पर शेयर पर, जो कि फुली पेड अप हैं। सो 2,000 शेयर्स इंटू 8, और वो पैसा कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 16,000 रुपीज। शेयर फॉर फीचर अकाउंट से आप बाकी पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि हर शेयर की जो वर्थ है, फेस वैल्यू है, वो 10 रुपए है, बट अभी आप उसे 8 रुपए पर इशू कर रहे हैं। बाकी बच गया 2 रुपए पर शेयर। सो 2 इंटू 2,000, 4,000 रुपए हमारे कम पड़ रहे हैं एज पर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। सो वो 4,000 रुपए हम कहां से निकालेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से, क्योंकि हमने अभी उसमें 24,000 रुपए डाले थे। दिस वॉज द गेन फॉर द कंपनी, क्योंकि शेयर्स तो फॉरफिट हो गए लेकिन ये पैसा आपके पास बच गया। सो 24,000 रुपए बच गया था फ्रॉम द फॉरफिटेड शेयर्स, उसमें से 4,000 रुपए आप यूज कर लेंगे टू मेक दीज शेयर्स एट ₹10। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल को आप 10 रुपए के हिसाब से ही क्रेडिट करना चाहते हैं। 2,000 इंटू 10 इज 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए टोटल फेस वैल्यू है शेयर की, लेकिन आपने उसे इशू किया 8 रुपए के हिसाब से, तो 8 इंटू 2,000 16,000 आपके बैंक में आ गया। बाकी 4,000 आपने कहां से निकाले, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से।
नेक्स्ट यू विल ट्रांसफर जो भी पैसा शेयर फॉर फीचर में बच गया है, कितना बचा, 24,000 रुपए था, 4 आपने निकाल लिया, 20,000 रुपए बच गया, that you will be transferring to capital reserve account. Entry will be share for feature account debited to capital reserve account, 20,000 रुपए on both the sides. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.